नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज मित्र देश के इस एपिसोड में हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जिसका विश्लेषण हम करेंगे, जिसने वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खास तौर से चीन की गलियारों में। खबर बड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $500 मिलियन यानी करीब 4,100 करोड़ रुपए के निवेश का ऐतिहासिक ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भरोसा है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का। आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच समंदर की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई है और साझेदारी का अब एक नया युग शुरू हो चुका है। तो अगले कुछ मिनटों में ऑस्ट्रेलियाई पीएम के हर उस बयान का विश्लेषण हम करेंगे जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको चौंका दिया है। अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम का ये बयान आप सुनिए। A great honour to host you for our annual Leaders Summit today. Australia and India are close partners and even closer friends. 6 years into our comprehensive strategic partnership, Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries so we can continue to grow from strength to strength. Today we have done exactly that across the breadth of our relationship. With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. We will boost strategic coordination, increase the complexity of our defence exercises and further build interoperability between our defence forces. जब कोई देश किसी को टॉप टियर सुरक्षा पार्टनर कह देता है तो उसका अर्थ है कि अब दोनों देशों के बीच न सिर्फ खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस बल्कि और भी दूसरे स्तर की बातचीत होती है। वही होगा जो नेटो देशों के बीच होता है। यानी इसका मतलब साफ है, युद्ध की स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं एक दूसरे के साजो सामान का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए एक सीधा चेकमेट है। पहली बार दोनों देशों ने एक रोड मैप तैयार किया है। ये केवल कागज पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भारत के बढ़ते दबदबे की गवाही है। अब ये दूसरा बयान सुनिए। Consult on defence-related developments in the Indo-Pacific that affect our shared interests. In addition, we have endorsed a joint maritime security collaboration roadmap and agreed to a new Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains. Today we have welcomed the signature of the Memorandum of Understanding for the Australia-Canada-India Technology and Innovation Partnership, driving trilateral cooperation with our shared partner Canada on critical and emerging technologies. And as we expand our cooperation in science and technology, we have agreed to commission a temporary space tracking terminal on Cocos Keeling Islands, which will support India's landmark Gaganyaan human spaceflight program. Of course, no country has been immune to the economic impacts from the conflict in the Middle East, and as such, the Prime Minister and I have welcomed a joint statement on energy security. This statement recognises the importance of supply chain resilience and accelerating the energy transition, including promoting the uptake of renewable energy resources and the electrification of our energy systems. बता दें, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब ऑस्ट्रेलियाई जमीन से ट्रैक किया जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोकोस द्वीप की लोकेशन ऐसी है जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री
धरती के चक्कर लगाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया उनकी सुरक्षा पर नजर रखेगा और ये दोस्ती अब जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी तक लिथियम और कोबाल्ट के लिए दुनिया जिस चीन पर निर्भर थी अब नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना भंडार है और भारत के पास बाजार है। ये एमओयू भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यहाँ एक त्रिकोण भी बन रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हमारा भारत अपनी उभरती हुई तकनीकों यानी जैसे एआई, क्वांटम में दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी भी कर रहा है। भारत के परमाणु रिएक्टरों को ईंधन की सख्त जरूरत थी। साल 2015 में अटका ये समझौता अब जमीन पर उतर चुका है और इसका एमओयू साइन हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम से भारत के घर रोशन होंगे और वो भी बिना प्रदूषण फैलाए। ये भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति का सबसे मजबूत स्तंभ होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी की मौजूदगी में जो $500 मिलियन का महा ऐलान हुआ है वो भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF में जाएगा। ये पैसा भारत के हाईवे, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक पार्क्स में लगेगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लाखों नौकरियां पैदा होंगी। चलिए अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत की दोस्ती और चीन को कैसे ये लगा महा झटका, वो समझ लेते हैं। यानी कि ड्रैगन की बेचैनी का कारण क्या है पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर यानी जिसे हम साउथ चाइना सी कहते हैं और हिंद महासागर में जिस तरह से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को थोपने की कोशिश की है छोटे छोटे देशों पर, उसने लोकतांत्रिक देशों को एक मंच पर ला खड़ा किया है। लेकिन यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का साथ आना चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है और सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसके पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं है बल्कि गहरी रणनीतिक विषाद भी है। सबसे मुख्य बिंदु है सप्लाई चेन की घेराबंदी। जी हाँ, इकोनॉमिक चोकपुल। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की छवि है और दुनिया के ज्यादातर देश या यूं कहें कि अधिकांश देश लिथियम, कोबाल्ट और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर ही निर्भर रहे हैं। अब हम झटका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इन खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है और पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए इस समझौते का सीधा मतलब ये है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया अब ये खनिज चीन को देने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर भारत को देगा। अब इससे क्या होगा? इससे भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी का वैश्विक केंद्र बनेगा, जिससे चीन की मोनोपोली पूरी तरह से टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा बिंदु है सुरक्षा कवच और हिंद प्रशांत। जी हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर कहा है। यानी ये शब्द चीन के लिए एक खतरे की घंटी है। अब यहाँ झटका इसलिए है क्योंकि अब तक चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जहाजों के जरिए धौंस जमाता था। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त रक्षा अभ्यास का मतलब है कि अब दोनों सेनाएं मिलकर चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगी। कोकोस द्वीप पर भारत का ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित होना चीन की नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करने में भारत की क्षमता को दोगुना कर देगा। तीसरा पॉइंट है यूरेनियम और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता। जी हाँ, चीन हमेशा से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को लेकर सवाल उठाते रहता है और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की राह में रोड़े अटकाता रहा है। अब यहाँ पर भी चीन को झटका इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन की परवाह किए बिना भारत को यूरेनियम निर्यात करने का रास्ता साफ कर दिया है, एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये दिखाता है, प्रमाणित करता है कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति मानता है। यानी जब भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी तो उसकी औद्योगिक रफ्तार चीन को पीछे छोड़ने की ताकत रखेगी। चौथा बिंदु है निवेश का रुख। जी हाँ, बीजिंग से दिल्ली की ओर ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF में $500 मिलियन का निवेश एक बहुत बड़ा संकेत है। अब ये $500 मिलियन झटका क्यों है चीन के लिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पेंशन फंड और सरकारी निवेश पहले ही चीन के बाजारों में खूब लगता था, लेकिन अब वहां से पैसा निकालकर
भारत में लगाया जा रहा है। ये वैश्विक निवेशकों के बीच एक मैसेज जा रहा है। मैसेज ये है कि भविष्य भारत में है, चीन में नहीं है, और चीन की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच ये पूंजी का पलायन उसे कमजोर कर रहा है। पांचवा बिंदु है क्वाड की मजबूती। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड में, यानी कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्लब में है। उसके सदस्य हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ चीन को झटका इसलिए है क्योंकि चीन क्वाड को एशियाई नेटो कहता है और इसे तोड़ने की कोशिश वो करता रहता है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं क्वाड में, जो एक दूसरे की ताकत को और मजबूत बना देता है। एक ऐसी ताकत बना देता है जिससे टकराना चीन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। छठा नंबर है तकनीकी मोर्चे पर मार। जी हां, आप साइबर सुरक्षा देख लीजिए। साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी यानी क्रिटिकल टेक पर नई साझेदारी का सीधा लक्ष्य चीन के तकनीकी जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ऐसे सुरक्षित नेटवर्क बना रहे हैं जिनमें चीन की हुआई जैसी कंपनियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब चीन को झटका इसलिए लगा क्योंकि वो एक ध्रुवीय एशिया यानी कि यूनिपोलर एशिया चाहता है, अपनी दादागिरी चाहता है जहां उसकी हुकूमत चले। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये साफ कर दिया, स्पष्ट बता दिया कि 21वीं सदी का एशिया बहुध्रुवी होगा। यहाँ चीन के लिए एक साफ मैसेज है कि धौंस जमाने के दिन उसके चले गए हैं। अब दुनिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत भारत के मित्र देश का उसके साथ होना ये सुनिश्चित कर देता है कि भारत की तरक्की को रोकने वाला अब कोई नहीं बचा। अब अंत में चुराई गई मूर्तियों और पूर्वजों के अवशेषों की वापसी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का आत्मसम्मान कितना ऊंचा कर दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया भारत की शर्तों पर भारत के सम्मान के साथ दोस्ती निभा रहा है। खैर, आज के मित्र देश के शो का सार यही है कि भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं रह गया है, बल्कि एक सुरक्षा और विकास का इंजन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का ये बम्पर निवेश और रणनीतिक साथ इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी भारत की है। और हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल मिलते हैं फिर से मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।